आई विल सॉल्व सम वन और टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, एंड धीरे धीरे हम एक एक एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द नोट्स, ध्यान देना खाली। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। बेसिकली यू शुड रिमेंबर सम पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख लेना। जनरली आई डिवाइड क्वेश्चंस इनटू थ्री टाइप्स। एनपीओ क्वेश्चंस, एनपीओ क्वेश्चंस into three types. या बेसिकली टू टाइप्स एंड एक टाइप को मैं दो में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ, फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ, this is a prepare final accounts if the first year of the NPO is given, and second, not the first year of the NPO, that is subsequent years. Subsequent years of NPOs, you have to prepare final accounts for the second year, third year, fourth year, fifth year, any year, not the first year. ऐसे क्यों? Because if it is the first year of the NPO, opening balance sheet is not applicable. Because first year में previous year होता ही नहीं. So we don't require previous year's balance sheet. We don't require opening balance sheet. We don't require starting point. Starting point zero रहेगा. Right? How to identify whether it is the first year or it is not a first year? Hint. Right? No opening balance in receipt and payment account. Receipt and payment account में opening balance नहीं होगा. Like example, this is receipt and payment account. There is a two balance brought down. Opening balance means this is not the first year, because in the first year there cannot be opening balances. Opening balances previous year से आते हैं. So if it is the first year, there won't be opening balances. ये फर्स्ट ईयर नहीं है, मे बी सेकंड ईयर हो सकता है, थर्ड ईयर हो सकता है, कौन सा भी ईयर हो सकता है, बट फर्स्ट नहीं. देखो, देयर आर टू बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ओपनिंग बैलेंस नॉट ए फर्स्ट ईयर. देखो, नॉट द फर्स्ट ईयर, नॉट द फर्स्ट ईयर, नॉट द फर्स्ट ईयर. बट जब फर्स्ट ईयर देखते हो, देखो क्या लिखा है, इज देयर एनी ओपनिंग बैलेंस? रिसीव पेमेंट को ओपनिंग बैलेंस से नहीं है, मींस जनरली दैट इज एन हिंट. इट इज नॉट द फर्स्ट ईयर. इट इज अ हिंट मैं बोल रहा हूं. हमेशा वैसे होगा ऐसे नहीं. समटाइम्स देयर आर नो बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. हो सकता है कभी कभी कि 31 मार्च पे बैलेंस ही नहीं था, ना ही कैश ना ही बैंक में. रेयर केसेस में हो सकता है. या क्वेश्चन में लिखा होता है, राइट, established on 1st April suppose 11 and they have given us receipt payment account as on 31st March 12, मतलब this is the first year. ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है. So hint, no opening balance, right, in receipt payment account or specifically given in the question.
स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर्स के क्वेश्चंस को आई डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. So this is my type 1 question. Now type 2 questions, right? Not the first year, matlab there has to be opening balance sheet. Opening balance sheet is given in the question. Question में they have given you opening balance sheet. And type 3, opening balance sheet is not given in the question. If it is not the first year, if it is not the first year, opening balance sheet is applicable. यहाँ पे लिखो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट इज एप्लीकेबल. ओपनिंग बैलेंस शीट इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल. Without opening balance sheet, you cannot find out the closing position, because there is an opening position plus recent payment is your closing position. If it is not the first year, you must have opening balance sheet. In some questions, they will give you opening balance sheet. In some questions, they will intentionally not give opening balance sheet. यहाँ पे लिखना, this is thanks God question. ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल. अगेन सेकंड टाइप क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, अगेन थैंक्स गॉड क्वेश्चन, सिंपल. बट इफ दे आर नॉट गिवन यू ओपनिंग बैलेंस शीट, ओह माय गॉड क्वेश्चन, ओएमजी क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसकी लेवल थोड़ी अलग रहेगी. सो इसमें फर्स्ट प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, and then this will become type 2 question. If they have not given you opening balance sheet, if they have not given you opening balance sheet, first prepare opening balance sheet with the given information. It will become type 2 question and then solve it. लिख लेना. Okay. Now, I will be starting with type 1 questions. When it is the first year of NPO. It is the first year of NPO. ये पहले समझ में आना चाहिए. हमें टाइप 1 का क्वेश्चन दिया है, टाइप 2 या टाइप 3. टाइप 3 में इंटेंशनली दे विल नॉट गिव ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में करनी होगी. जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी, इट विल बिकम टाइप 2 क्वेश्चन एंड हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे. तो ओ माय गॉड से हमें थैंक्स गॉड में कन्वर्ट करना है एंड देन वी विल सॉल्व इट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन नेक्स्ट,
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हर क्वेश्चन में दिया जाएगा, राइट, विल एक्ट लाइक ट्रायल बैलेंस. Recent payment account will act like a trial balance, and therefore every item of recent payment account will have one unique effect in final account, in income and expenditure account, which is like profit and loss account, and balance sheet. So हमारे क्वेश्चन में व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, रिसेंट पेमेंट अकाउंट, वो हमेशा टैलीड रहेगा. रिसेंट पेमेंट डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट हमेशा. देन ध्यान देना. नेक्स्ट, सेकंड, every adjustment, every item of adjustment will have minimum two effects. Will have minimum two effects. Will have minimum two effects. क्लियर है? करें स्टार्ट. अच्छा लिख लेना ये. और ये कसम नंबर 1, दिस इज कसम नंबर 2. ठीक है? हाँ, अब देखो, विश्व शांति मंडल was established on 1st April 2011. 1st April 2011 को एस्टैब्लिश हुआ. आगे ठीक है, ध्यान देना. एंड द फॉलोइंग इज द इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर फर्स्ट ईयर 11-12. दिस इज द फर्स्ट ईयर. सो देयर शुड बी नो ओपनिंग बैलेंस इन द रिसेंट पेमेंट. नहीं भी है. रिसेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 12. 11-12 में यू रिसीव दिस मच, यू स्पेंड दिस मच. क्या क्या पैसा आया, कहां पे पैसा गया, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. ठीक है. रिसीट देखो, टू सब्सक्रिप्शन, दिस विल बी इनकम. Entrance fees, if nothing is mentioned, income. Donation, if nothing is mentioned, income. We received money. Receipts are either income or either liabilities or decrease in fixed assets. You receive the money because you received the income, or you incurred some liability, or there is a sale of fixed asset. Payments, furniture purchase किया आपने, asset. Books purchase किए, asset. Printing and stationery, expense. Newspaper, expense. ऑफिस के लिए रेंट के लिए पेमेंट किया, एक्सपेंस. सैलरी पेमेंट किया, एक्सपेंस. एफडी में पैसे डाले, इन्वेस्टमेंट, असेट. एंड सब पेमेंट करने के बाद यू आर लेफ्ट विथ 21,800 विथ यू. जो बचा है वो असेट है. वन यूनिक इफेक्ट, depreciate furniture by 1,000, minus from expense, sorry, minus from asset, add in expense, minus from asset, add in expense. Entire amount of entrance fees and donations are to be capitalized. Capitalization of incomes or capitalization of receipts is add in the capital fund. Capital में add करेंगे. Capital fund मतलब capital में add करेंगे. And capitalization of expense of the payments means add in assets. So they have asked us कि ये जो एंट्रेंस फीस है और डोनेशंस हैं, इनको कैपिटलाइज करना है. मतलब हम इनको राइट कैपिटल में ऐड करेंगे. कैपिटल में ऐड करेंगे. ठीक है. 10,000, 75,000. There are 1,000 members
ईच पेइंग ₹100 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। कितने मेंबर्स है? 1000। एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन कितना लेना है? 100। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 1 लाख। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर 1000 मेंबर्स, हमारे क्लब के 1000 या मंडल है जो हमारा, उसके 1000 मेंबर्स है। हर मेंबर की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस इज 100। तो 1000 लोगों से 100 लेने हैं, तो कितना सब्सक्रिप्शन इनकम होना चाहिए? 1 लाख। You should have received, मंडल should have received 1 लाख सब्सक्रिप्शन, बट हमें मिला कितना है? 95। Your income should be 1 lakh. Your income should be 1 lakh. You are received just 95,000, मतलब 5,000 is outstanding. मतलब अभी भी I think 50 people are there. 50 people are there who have not paid subscription. वो आपके मेंबर है बट उन्होंने सब्सक्रिप्शन पेड नहीं किया। रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड ऑफिस रेंट, एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी। फाइनल अकाउंट, कोई भी एडजस्टमेंट अलग नहीं है, फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट है। ठीक है, सो लिख लेना इन द बुक्स ऑफ विश्व शांति मंडल, इन द बुक्स ऑफ विश्व शांति मंडल, इन द बुक्स ऑफ विश्व शांति मंडल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको जनरली P&L अकाउंट बोलते हैं। नॉर्मली एनपीओस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम एज P&L, कुछ अलग नहीं। income and expenditure account for the year ended. March 31st 2012 ना, 2012। टी फॉर्म में देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, inner column, outer column. Inner column for calculations, adjustments, outer column is for right, final values. बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, तो भाई बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 12। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, इसमें एडजस्टमेंट किस किस को है? एंट्रेंस फीस को कैपिटल में ऐड करना है, डोनेशन को कैपिटल में ऐड करना है। दे आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मींस दोस इनकम्स आर टू बी एडेड इन द कैपिटल। ठीक है, फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है। ठीक है, ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एंड सब्सक्रिप्शन को भी एडजस्टमेंट है। देयर इज सम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो जिनको एडजस्टमेंट है
मैंने उनको इनर कॉलम में लिखूंगा, बाकी मैं आउटर कॉलम में। एक एक एवरी आइटम ऑफ रिसेंट पेमेंट विल हैव वन यूनिक इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन है, रिसेंट पेमेंट के डेबिट पे, तो P&L के क्रेडिट या इनकम के क्रेडिट पे जाएगा। डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, डेबिट्स आर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इज इनकम। डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना मत, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, इट इज इनकम, एड इन इनकम, इनकम के क्रेडिट पे बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में 95,000 रिसीव्ड, यू आर रिसीव्ड 95,000, you have received 95,000. नेक्स्ट एंट्रेंस फीस कैपिटल में ऐड करना है, इधर लाइबिलिटी में। एंड असेट्स, यहाँ पे लाइबिलिटी में रहेगा कैपिटल फंड। कॉल डोंट कॉल इट इज अ कैपिटल, यू कैन कॉल इट कैपिटल फंड और जनरल फंड। ठीक है। there will be no opening balance because there is no opening balance sheet. This is the first year, so there will not be opening balance. So entrance fees and donations के थ्रू हमारा कैपिटल बना है। entrance fees 10,000 and donation 75,000 लिखो। entrance fees 10,000 inner column में, $10,000 डोनेशंस, उन्हें कैपिटलाइज करने को बोला इसलिए मैं कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, नहीं तो मैं इनकम में ऐड करता दोनों भी। इनर कॉलम में सब टोटल इज 85,000। ठीक है, आगे। सो एक साइड पे गया, सब्सक्रिप्शन इनकम में गया, डोनेशन से एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने को बोला है तो कैपिटल में मैंने ऐड कर दिया। जिनको नहीं समझ में आता है, आप यहाँ पे देखो, दे आर ऑन डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट है, आपने क्रेडिट पे ऐड किया है मतलब क्रेडिट है, लाइबिलिटी में ऐड किया है मतलब क्रेडिट है। वहां पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। रिसेंट पेमेंट को डेबिट है तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट फीस एंड डोनेशंस आपने कैपिटल में ऐड किया मतलब क्रेडिट किया, बराबर है। आगे एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है। बाय फर्नीचर, फर्नीचर इज परचेस ऑफ फिक्स असेट, लिखो असेट में, इनर कॉलम में फर्नीचर, बिकॉज उसको डेप्रिसिएट करना है। कितने का फर्नीचर है? 20,000, असेट में ऐड करो 20,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट बुक्स भी परचेस किए, असेट, असेट में ऐड करो। पेमेंट फॉर बुक्स, बुक्स परचेस कर रहे हो ना, असेट। कितने के बुक्स परचेस किए? 15। कोई डेप्रिसिएशन नहीं, बाहर लिख दो। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 एक्सपेंस, डेबिट पे। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एड इन एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक्सपेंस में लिखो, इनकम है तो इनकम में लिखो, एसेट है तो एसेट में लिखो, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी में लिखो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट है क्या? अनयूज्ड वगैरह नहीं, बाहर लिख दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की है? 5,000। देन न्यूज़पेपर्स के लिए पेमेंट है, एक्सपेंसेस। 2 न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस में ऐड करो, कुछ तो 2,500। नेक्स्ट ऑफिस रेंट के लिए पेमेंट है 7,300 टू ऑफिस रेंट, इनर कॉलम में उसको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है 7,300। एक लाइन ब्लैंक रखना। फिर सैलरी का पेमेंट है 8,400, सैलरी का पेमेंट है 8,400 टू सैलरी, 8,400 इनर कॉलम में, बिकॉज उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। फिर एफडी है, एफडी की आपने पैसे डाले, एफडी में असेट कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख की एफडी, एफडी में
फिक्स डिपॉजिट्स असेट में 1 लाख, उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो जाने दो, ठीक है। ऐसा 10% एफडी 15% एफडी ऐसे कुछ लिखा नहीं है आगे। देन सब पेमेंट होने के बाद कैश बैलेंस 1800 कैश इन हैंड, असेट में लिखो, क्लोजिंग असेट है वो। सब पेमेंट होने के बाद इतना बाकी है, 31 मार्च 12 को इतना कैश है अपने पास एंड कैश एट बैंक। कितनी कैश इन हैंड है? कैश इन हैंड इज 1800 एंड कैश एट बैंक 20,000 असेट में। नेक्स्ट ईयर के रिसेंट पेमेंट में जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा उसके डेबिट स्टार्ट होगा, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस बोल के आएंगे नेक्स्ट ईयर में, टू बैलेंस बट डाउन बोल के आएंगे। रिसेंट पेमेंट के डेबिट पे आएगा टू बैलेंस बट डाउन, कैश इन हैंड 1800, कैश एट बैंक 20,000, वहां से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। फिर और पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग मिलेगा। इस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, इतना क्लिक होना चाहिए, ठीक है। आगे एवरीथिंग हैज बीन पोस्टेड टू वन साइड। देखो सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम में लिख दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, ऑफिस रेंट, सैलरी, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में लिख दिया। इंटरेस्ट फीस एंड डोनेशंस कैपिटलाइज करने को बोला था, कैपिटल फंड में ऐड करना था तो कर दिया। फर्नीचर बुक्स फिक्स असेट है, एफडी इन्वेस्टमेंट है, इन सब पेमेंट होने के बाद जो बचा है वो असेट है। एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और रिसेंट पेमेंट हैव वन यूनिक इफेक्ट इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हिच इज लाइक P&L एंड बैलेंस शीट। यहां तक किसका डाउट है तो प्लीज रेज द हैंड, देन ओनली आई विल गो अहेड, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग अहेड, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी शेयर इट ऑन ग्रुप, यू कैन गो चेक ऑन द ग्रुप, वहां पे डॉक्यूमेंट्स में रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस सर्विस गिवन विद सब्सक्रिप्शन, जनरली एनपीओ है ना तो उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, कोई मेंबर्स रहेंगे जो बाद में पे करेंगे, ठीक है, रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे, ठीक है। अब adjustments, every adjustment has two effect, depreciate furniture by 1,000 minus from asset, less depreciation, it is 19,000 minus from asset, 20,000 से 1,000 depreciate हो गया, 19,000 बचा, depreciation expense P&L के डेबिट पे या इनकम एक्सपेंस के डेबिट पे, टू depreciation on furniture। फाइनल अकाउंट में भी वही करते थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, देखने का तरीका अलग है, खाली देखने का तरीका अलग है। एसेट से माइनस, एक्सपेंस में ऐड, एक्सपेंस में ऐड। नेक्स्ट, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फीस कैपिटल आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मैंने डायरेक्टली कैपिटल फंड में ही ऐड कर दिया। देयर आर 1,000 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, योर सब्सक्रिप्शन इनकम इज 1 लाख। ये 1 लाख कैसे आया? 1,000 मेंबर्स, अगर 1,000 मेंबर्स है, हर एक से 100 रुपीज लेना है तो माय इनकम शुड बी हाउ मच? 1 लाख ना। अगर 1,000 मेंबर्स को मैं सर्विस दे रहा हूं, वो मेरे मेंबर्स है, मेरे मंडल के, हर एक से 100 रुपीज लेने, तो मेरी इनकम होनी कितनी चाहिए? 1 लाख। रिसीव्ड कितनी? 95। सर इनकम होनी चाहिए 1 लाख, मिली 95 है, बाकी सर आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड इन इनकम, ये रिसीवेबल है, मिलेगी, लाइक डेटर्स, सेल हो गए बट पैसे आने बाकी है, सर्विस दे दी उनको बट पैसे लेने बाकी है। ऐड इन इनकम, ऐड इन असेट, असेट में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। $5,000। हमने इन मेंबर्स को पूछा आप हमें कब पैसे दोगे, वो बोलेंगे नेक्स्ट ईयर में देंगे सर, वो नेक्स्ट ईयर में देंगे, ये रिसीवेबल है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में ये मिल जाएगा, होपफुली ये 5,000 नेक्स्ट ईयर में आएगा, कभी कभी बैड डेट्स भी हो सकता है, राइट। सो 5,000 ऐड इन इनकम, ऐड इन असेट, इनकम में ऐड हो गया मतलब क्रेडिट हो गया, असेट में ऐड हो गया मतलब डेबिट हो गया। इनकम क्रेडिट है उसमें ऐड किया मतलब क्रेडिट, असेट डेबिट होता है उसमें ऐड किया मतलब डेबिट।
क्रेडिट डेबिट टैली। इनकम रिसीवेबल, इनकम है जो रिसीवेबल है, इनकम है इसलिए एड इन इनकम, रिसीवेबल है इसलिए एड इन असेट। ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। सैलरीज में 600 ऐड करना है, एड आउटस्टैंडिंग। सो 8400 का पेड हुआ है, 600 पेएबल है, योर सैलरी फॉर द ईयर इज 9000। पूरे साल की सैलरी 9000 है, पेमेंट 8400, इसलिए पेमेंट साइड पे 8400 दिख रहा है। 600 इस साल में पेड नहीं हुआ, होपफुली नेक्स्ट ईयर में पेड होगा, ये आज पेएबल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, ये लाइबिलिटी है, आज लाइबिलिटी है, कल जाके पेड होगी, नेक्स्ट ईयर में पेड हो सकती है, होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा, बट ये नेक्स्ट ईयर में पेड होगी। आगे, एंड ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग 700, टोटल रेंट इज 8000, पूरे साल का रेंट 8000 है, उसमें से 7300 पेड किया, इसलिए पेमेंट साइड पे दिख रहा है, 700 पे करना बाकी है, नेक्स्ट ईयर में पे हो सकता है, ये आज लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। होपफुली ये दोनों नेक्स्ट ईयर पेमेंट पे मिल जाएंगे, पेमेंट साइड पे 600 पेड, 700 पेड, जब वो पेड होगा लाइबिलिटी खत्म। एंड ये जो 5000 है वो होपफुली नेक्स्ट ईयर रिसीट में दिखेगा, पैसे मिल गए, ये रिसीट पे होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में, और ये पेमेंट पे होने चाहिए नेक्स्ट ईयर में। मैं आपको नेक्स्ट ईयर का व्यू दे रहा हूं, 5000 इस साल में नहीं मिले, नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर की रिसीट पे होने चाहिए। 600 एंड 700 पेड नहीं किए इस साल में, नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के पेमेंट पे होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। अगर ये पेड नहीं होते दोनों तो लाइबिलिटी विल कंटिन्यू, अगर ये रिसीव नहीं होता तो असेट विल कंटिन्यू। अगर 5000 इस ईयर में जो रिसीवेबल है, अगर नेक्स्ट ईयर में भी रिसीव नहीं होते तो दैट विल कंटिन्यू, तो नेक्स्ट ईयर वो असेट में दिखेंगे। 600 700 जो इस साल के पेएबल है, अगर नेक्स्ट ईयर में पेड होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, बट अगर पेड नहीं होते दे विल कंटिन्यू एज अ लाइबिलिटी, जब तक पेड नहीं होता तब तक लाइबिलिटी, 5000 जब तक रिसीव नहीं होता तब तक असेट। क्लियर है? आगे, हाँ, डन। नाउ फाइंड आउट योर इनकम, नेट इनकम, सॉरी, टोटल इनकम इज 1 लाख, इनकम साइड की टोटल 1 लाख है, माइनस एक्सपेंसेस, you will get surplus. Let me find out 10,000, 20,000, 25,500, 25,500 मतलब 74,500 आई थिंक, चेक करो 74,500 मेरे हिसाब से, यस परफेक्ट। योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर बाय 74,500, ये आपका प्रॉफिट है, इसको लिखा जाएगा, लिखो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज सरप्लस, ये प्रॉफिट है जिसको सरप्लस बोलते हैं। एनपीओस कॉल्ड इट एज ए सरप्लस, सरप्लस विल इंक्रीज योर कैपिटल फंड, कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट्स आर एडेड इन कैपिटल से सरप्लस। कितने का सरप्लस मिला? 74,500, टोटल इज 159 सॉरी 500, कैपिटल फंड कितना हुआ? 1,59,500, and therefore you can get your total liabilities 0 0 0 0, 6 plus 5 11, 11 plus 8 7 18, 18, 1 carried 1,60,000, यहाँ पे 1 लाख, अच्छा, सो यहाँ पे 800, यस, कैरिड कुछ भी नहीं,
19 plus 15, 20, 20 plus 14, 34, 34, 1 lakh 34, 134, 135, 135, 140, 160 हो गई बैलेंस शीट टैली। लिखो, मैं वीडियो हाइड करता हूं, मतलब आपको पूरा दिखेगा। यस, फाइनल अकाउंट्स की तरह ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। लिखो जल्दी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सबसे सिंपल पूरे चैप्टर का। सो स्टेप 1, every item of receipt and payment account will have one unique effect, will have one unique effect। कैसे यूनिक इफेक्ट, ध्यान देना, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। एवरीवन, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहेगा। एवरी आइटम of recent payment will have one unique effect। ये चैप्टर हो गया ना हमारे सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हो गया, इसलिए 100% अटेंशन के साथ अटेंड करो लेक्चर्स, मिस मत करना लेक्चर्स गलती से। ये चैप्टर हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। दीज आर माय रिसीट्स, 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 इनकम्स, डेबिट पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, दिस इज बैलेंस शीट, liabilities and assets। some receipts increases your income, add them in income। some receipts increases your liabilities, like cap अभी देखा हमने, right? interest fees and donations, we added them in the liability side। so some receipts increases your liabilities and some receipts will decrease your assets, sale of assets, sale of asset, payments, payments, some payments will increase your expenditure, some payments will increase your assets and some payments will decrease your liabilities, depends, repayment of liabilities। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये अगर फ्लो जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत इजी हो गया।
You receive money because your incomes are increased. You receive money because they are your liabilities. You receive money because you have sold your assets. You make the payment for the expenses because you are incur the expenses, you have paid the expenses. You make the payment because you want to acquire the assets, and you make the payment to settle your liabilities. You make the payment to settle your liabilities. ठीक है? They are same. NGO and NPO is same. ठीक है? अलग अलग नाम है खाली. ठीक है? क्लियर है? नाउ अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 डन. यस. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. अब ध्यान देना, सेम लॉजिक के साथ हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है? Question number 9. Following is the recent payment of Baudan pensioners in newly started on 1st April 10. You started that on 1st April 10 and they have given us recent payment account which is equivalent to trial balance for us on 31st March 11. So first year is 10-11. First year का है. Do you require opening balance sheet? No, because there cannot be opening balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट हो ही नहीं सकती बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर. दिस इज द फर्स्ट ईयर. हर क्वेश्चन में एक चीज लिख के रखने की हमेशा. विच इज योर करंट ईयर? 10-11 इज द करंट ईयर. विच इज योर प्रीवियस ईयर? एक्चुअली प्रीवियस ईयर इज नॉट एप्लीकेबल, बट अगर होता तो योर प्रीवियस ईयर वुड बी 9-10 एंड your next year will be 11-12. 11-12 or any year after 11-12. ठीक है? Next. ठीक है? They have given you receipts. Subscription received. You have received subscription entire of 93,900. पैसे आए हैं. Subscription is the income. However, try to understand. You have received subscription for 3 years. 3 year की subscription मिली है. Your current year is 10-11. Your current year is 10-11. इस 10-11 में you have received subscription of 93,900. उसमें से current year की 85,000 है. 11-12 next year है. And 12-13 next year है. देखो मैंने क्या किया. Whatever I have received during the year, I have received 93,900. मैंने उसको डिवाइड किया. करंट ईयर का कितना है एंड अदर ईयर का कितना है. करंट ईयर एंड अदर ईयर. करंट ईयर क्या है? 31st March 11 एंडेड, मतलब 10-11 इज द करंट ईयर. सो करंट ईयर का 85,000 है. नेक्स्ट ईयर का 6,500 एंड 2,000 है. नेक्स्ट ईयर का पैसा आज ही मिला है. फ्यूचर नेक्स्ट ईयर 11-12 एंड 12-13 का सब्सक्रिप्शन आज ही मिला है. एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी, नॉट इनकम बट लायबिलिटी. जब आपको 6,900 मिले, आप बोल रहे कौन से पैसे? बोल रहे नेक्स्ट ईयर का आज ही ले लो. 2,000 उसके नेक्स्ट ईयर का आज ही ले लो. यू आर रिसीव्ड द मनी. पैसा आया है, राइट? लक्ष्मी को कभी नहीं बोलना. लेने का पैसा, पैसा ले लो, लेने में दिक्कत नहीं है, बट उसको इनकम मत बोलो. उसको क्या बोलो? लायबिलिटी. सो आउट ऑफ दिस 93,900 उसमें से 85,000 इनकम है एंड ये दोनों लायबिलिटीज है. क्यों? बिकॉज फ्यूचर
का पैसा आज ही आया, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज, स्टिल यू हैव रिसीव्ड द मनी, रिसीव्ड इन एडवांस. एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज नॉट इनकम बट लाइबिलिटी, इट इज लाइबिलिटी. ठीक है, आगे इंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोलते तो राइट, इनकम है, उन्होंने बोला है इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. डोनेशंस, कुछ डोनेशन के बारे में लिखा है कि नहीं, इनकम, नॉट स्पेसिफिक डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन है इनकम. रेंट पेड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑफ गेट टुगेदर एक्सपेंस, चैरिटी के लिए एक्सपेंस, सैलरी के लिए पेमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर के लिए पेमेंट असेट, परचेस किया आपने, एफडी इन्वेस्ट किया असेट, एंड सब पेमेंट होने के बाद जो बाकी है, इतना पैसा आपके पास अभी भी है 31,800 असेट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 10,000. आउटस्टैंडिंग इनकम, सब्सक्रिप्शन इज इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल, add in income, add in asset, add in income, add in asset. इंटरेस्ट फीस को कैपिटल में ऐड करना है. ठीक है, कैपिटल फंड शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ इंट्रेंस फीस, मतलब वो कैपिटल फंड किसके थ्रू बनेगा, इंट्रेंस फीस 11,000 एंड सरप्लस ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जो आएगा दैट विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड. वो वैसे भी होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, डेप्रिसिएट फर्नीचर 2,500 असेट से माइनस करेंगे, एक्सपेंस में ऐड करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 11 and the balance sheet as on that date. Everyone with me. In the books of Baudan Pensioners Association. मैं धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करूंगा. बाउदान पेंशनर्स एसोसिएशन. ठीक है, सच एसोसिएशन राइट वर्क्स फॉर द पेंशनर्स राइट्स. समझ में आ रहा है, एनपीओ है वो, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट. सॉरी, रेसिडेंट पेमेंट तो दिया है ना हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. थर्टी फर्स्ट March 2011. 31st March 2011. हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव पेजेस लेने के, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे. एक पेज पे इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट अलग नहीं करना होता. ठीक है, डेबिट इज एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट क्रेडिट लिखते जाओ, क्रेडिट इज इनकम, देन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन. March 31st 2012, I think, right now 2011.
ठीक है, आई हैव नॉट टॉट यू सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट इन डिटेल, जितना रिक्वायर्ड है अभी तक उतना ही बोला है, ठीक है। सो ये फर्स्ट ईयर के एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ा एक फ्लो समझ में आ जाएगा एक्चुअली करना क्या है, एंड देन आई विल एंटर इनटू सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, ठीक है। देन लायबिलिटी एंड असेट्स, लायबिलिटी एंड असेट्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय, subscription received, I always take entire subscription 93,900 in inner column में, हमेशा 93,900 inner column में। I know it's not my entire income, मैं adjustment करूंगा। So मैंने बोला इस साल में मुझे 93,900 की सब्सक्रिप्शन मिली, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। आगे उसके बाद, ठीक है, एंट्रेंस फीस 11,000 कैपिटलाइज करने को बोला है तो कैपिटल फंड में ऐड करो, लायबिलिटी में कैपिटल फंड होगा, एड इन दैट एंट्रेंस फीस, कितने की एंट्रेंस फीस है, लेट मी चेक, 11,000। उसके बाद डोनेशन कुछ लिखा नहीं है, इट इज नॉर्मल डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन के साथ नहीं है वो, सो इट इज इनकम। सब्सक्रिप्शन के बाद 4-5 लाइन हमेशा रखते जा, फिर बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितने का डोनेशन है, लेट मी चेक, 25,000, इनकम में ऐड करो। आगे रिसीट साइड डन, रेंट एक्सपेंस 6,000, टू रेंट आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है क्या, नहीं है, आउटर कॉलम में 6,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,800, देन 2 expenses for get together 3,300, the benefit is just 1 year, हाँ मेमोरी लाइफ टाइम रहेगी वो, बट मेमोरी से कोई लेना देना नहीं, हमें एक्सपेंस का बेनिफिट देखना है। तो जो गेट टुगेदर का एक्सपेंस है दैट इज फॉर द ईयर ओनली, एवरी ईयर आपको करना होगा एक्सपेंस फॉर गेट टुगेदर फंक्शन। कितने का है, 3,300। फिर चैरिटी, टू चैरिटी, कितने के चैरिटी एक्सपेंस है, 1,000। देन सैलरी 4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप बाहर लिख सकते हो। देन फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर फिक्स असेट, फिक्स असेट में आ जाएगा फर्नीचर, इनर कॉलम में डेप्रिसिएट करना है 30,500, 30,500। आगे एफडी 50,000, कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, इंटरेस्ट रिसीवेबल वगैरह नहीं, एफडी करोगे तो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आगे और सब पेमेंट होने के बाद 31,800 जो बाकी है वो बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो, सॉरी मैंने गलत जगह पे लिख रहा हूं, असेट में लिखना है मुझे, कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना है, 31,800, 31,800 एड इन असेट, वो असेट है। एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट, अब हम उसको एडजस्ट करना है।
सब्सक्रिप्शन सबसे एंड में करो बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, डिफिकल्ट हो सकती है कोई बच्चों के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन होल्ड पे रखो, पहले सिंपल करो, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, पहले कैपिटल करके कैपिटल में ऐड करके रखा है। आगे देन capital fund should be created out of the interest fees and surplus, yes. Depreciate furniture by 2500, less depreciation. So now your asset is just 28,000 minus from expense, sorry, minus from asset, add in expense. Minus from asset, add in expense. एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 1 करनी है, सॉरी। जो सब्सक्रिप्शन है 93,900 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल में ये आपका करंट ईयर है, विच इज द करंट ईयर 11-12, नहीं 10-11, 10-11 इज द करंट ईयर। इस 10-11 में यू आर रिसीव्ड 93,900। इस ईयर में यू हैव रिसीव्ड, आपके पास पैसा आया है 93,900 का, 93,900। इसमें से प्रीवियस ईयर का कुछ है क्या, विच इज द प्रीवियस ईयर, एक सेकंड, जो मिला है उसका बाइफर्केशन, प्रीवियस ईयर दिस इज CY, प्रीवियस ईयर 9-10 कुछ भी नहीं, नेक्स्ट ईयर 11-12 एंड उसके बाद भी एक नेक्स्ट ईयर है 12-13। Yes, 93,900 received includes, right, 6,900 for 11-12, 6,900 for 11-12, and right 2,000 for the 12-13। मुझे बोलो ये जो मुझे 6,900 मिला है वो किस ईयर में मिला है, 10-11 में, वो किस ईयर का है, 11-12 का। 11-12 का पैसा मुझे आज ही मिला, नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे आज ही मिला। तो जब आज मिलेगा ले लो, पैसा आ रहा है तो नहीं मत बोलो, लक्ष्मी को कभी नहीं नहीं बोलना, आ रहा है तो ले लो, रिसीट दिखाओ, बट डोंट शो इट इज एन इनकम, इट इज रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है, लायबिलिटी। ये सो टुडे ये 6,900 11-12 की इनकम है, 10-11 की नहीं। और ये 2,000 जो आपको मिला है ये इनकम 12-13 की है, 10-11 की नहीं। उस साल की इनकम आज ही मिली है, फ्यूचर की इनकम आज ही मिली है। सो टुडे डोंट कॉल इट एज इनकम, कॉल इट एज ए लायबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। सो आज हम बोलेंगे इसमें से करंट ईयर का कितना है उसको 3 में डिवाइड करेंगे, सिंपल वर्ड्स में। करंट ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। प्रीवियस ईयर का 0, नेक्स्ट ईयर का 8,900, इसका मतलब करंट ईयर का 85,000 है। ये जो है ये आपकी इनकम है, रिसीव्ड, व्हाटएवर रिसीव्ड फॉर द ईयर इज इनकम एंड व्हाटएवर रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इज लायबिलिटी। आज हम इसको लायबिलिटी बोलेंगे, 10-11 में लायबिलिटी बोलेंगे, 11-12 में उसमें से 6,900 इनकम बोलेंगे एंड 12-13 में उसमें से 2,000 लायबिलिटी बोलेंगे। अनवाइंड करेंगे, 8,900 पूरा आज लायबिलिटी बोलेंगे, उसमें से 6,900 इनकम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर में और 2,000 उसके नेक्स्ट ईयर में इनकम बोलेंगे। धीरे धीरे उसको इनकम में कन्वर्ट करेंगे। सो लिखो लेस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 8,900, इनर कॉलम में ये करंट ईयर का बचेगा, जो मिला है
उसमें से अदर ईयर्स का हटा दो तो करंट ईयर का बचेगा। मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं बिकॉज एडजस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। एंड ऐड, सो यू हैव रिसीव्ड 85,000 और उसके बियॉन्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ये मिला नहीं है, एड इन इनकम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 10,000, टोटल इनकम इज 95,000। इस ईयर का 95,000 है, इस ईयर का 95,000 है, उसमें से 10,000 मिला नहीं, मतलब 85 मिला है। भले ही साल में 90,900 है, भले ही साल में 90,900 मिले हैं, उसमें से 8,900 नेक्स्ट ईयर के, तो इनकम नहीं, तो इनकम में बचा 85। सो इस ईयर का इस साल में मिला 85, इस ईयर का अभी भी मिलना बाकी है 10,000, ऐसे टोटल इस साल का कितना है 95, इसलिए इनकम इज 95। Even if you don't understand, don't worry, I will go in detail in this adjustment. This deduct from income, add in liability, received for next year लिखो, subscription received advance, received in advance, in advance 2011-12, 2012-13, 11-12 का कितना, 11-12 का 6,900 and 2,000, ऐसे टोटल राइट 8,900। आज हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं तू इस ईयर का नहीं है, तू नेक्स्ट ईयर का है, तो इस ईयर की इनकम नहीं, तू नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो आज हम तुझे लायबिलिटी बोलेंगे और कल हम तुझे इनकम बोलेंगे। आज हम तुझे लायबिलिटी बोलेंगे, इनकम से निकाल के लायबिलिटी में लेके जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर यही लायबिलिटी को हम फिर कहां पे डाल देंगे, इनकम में डाल देंगे। तो आज की इनकम नहीं, तो कल की इनकम है, तो आज तो लायबिलिटी है, तो इनकम से निकाल के लायबिलिटी में डालेंगे, और कल तुझे फिर लायबिलिटी से हटा के इनकम में लेके जाएंगे। ठीक है, इसका दिस इज रिसीवेबल, इस ईयर का बट मिला नहीं, रिसीवेबल, एड इन इनकम, एड इन असेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, दैट इज 10,11, 10,000। ठीक है, I think adjustments are done, we can close the account. Your total income now, subscription income 95,000, 25,000 donation income, total 1,20,000. Minus from expense 800, 1,100, 1,600, 2,100 plus 900, 3,000, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 21 मतलब 9, 33 carried 9. Is it 99,900? Is it 99,300? 99,900, perfect. This is again income side is more than expenditure side. तो यहाँ पे लिखा जाएगा to excess of income over expenditure, surplus. Income over expenditure. Surplus. Surplus is added in capital fund. Add. Deficit होता है तो expenditure will be more than income. Expenditure will be more than income. Loss है तो credit पे आएगा यहाँ पे, और फिर वो कैपिटल से माइनस होगा, सरप्लस। Your total capital fund is 1,10,900 plus other incomes, other liabilities 800, 1 carry 9, 1,19,800. Let me check, वही है क्या? 800 तो मुझे मिल गया, 28 plus 10, 38, 38 plus 50, 88, 88 plus 1, 89, 89 plus 30, 99, 1,09,000, 1,19,000.
tallied. अच्छा, पहले रिसेंट पेमेंट देखो जिनको लिखना है। और फिर बैलेंस शीट लिखो। 1,19,800, 1,19,800। मैं वीडियो 2 मिनट हाइड करता हूं तो आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। Anything received in advance is a liability. And this is your balance sheet. Anything received in advance is liability. जानबूझ के मैं सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो एक बार समझ में आ गया ना कहां से किधर डालना है, तो मेजर एडजस्टमेंट्स में ले सकता हूं। आई थिंक आई एम क्लियर। Okay, I will go to the question number 12. Question number 12, again simple question, ठीक है। ग्रीन वैली स्कूल लोनावला। अगर आपको पता होगा, तारे जमीन पर की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, लोनावला में। नहीं, लोनावला, हाँ लोनावला में हुई थी ना। नहीं है तो कोई दूसरी मूवी की शूटिंग हुई होगी। इट्स क्वाइट फेमस स्कूल, ग्रीन वैली स्कूल फ्रॉम लोनावला। क्वाइट फेमस। ओके, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ग्रीन वैली स्कूल लोनावला was has presented the following information
and with this you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 10. So your current year is 9-10. 9-10 is the current year and the balance sheet as on that date. उन्होंने आपको बैलेंस शीट दी 1 अप्रैल 9. योर करंट ईयर ध्यान देना इज 9-10, मतलब 1 अप्रैल 9 to 31st March 10. उन्होंने आपको इस तारीख की पोजीशन दी है एंड इस साल का ये पूरे 12 मंथ्स का रिसीव पेमेंट दिया है. उन्होंने आपको फर्स्ट डे की स्टार्टिंग पॉइंट दी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दी है. वो सिंपल है, रीड करना सीखो. रीड 1 अप्रैल पे हमारे पास क्या क्या था वो दिया है, क्या हमारे एसेट्स थे, क्या हमारे लायबिलिटीज थे. फिर इस साल में हमने क्या पैसे लिए और कितने गए, और फिर हमें बोला है इस तारीख की बैलेंस शीट ढूंढो. ढूंढ सकते, क्यों नहीं ढूंढ सकते, बहुत सिंपल है. आई नो माई स्टार्टिंग पॉइंट, आई नो पूरे साल में क्या हुआ, मैं क्लोजिंग ढूंढ सकता हूं. ठीक है. So they have given us opening balance sheet, transactions during the year, we can find out closing. Opening पता है, transactions पता है, प्लस माइनस पता है साल भर का, क्लोजिंग ढूंढ सकते हैं. ठीक है, ध्यान देना. 1 अप्रैल बिगिनिंग में हमारे पास 6,54,000 का कैपिटल था. इस तारीख पे हमारे पास 6,54,000 का कैपिटल था. एंड में वो चेंज हो जाएगा. इस तारीख पे हमारे पास कैश इन हैंड 4,500 था एंड कैश इन बैंक 9,500 था. इस तारीख पे हमारे पास कैश इन बैंक बैलेंस था, तो ऑब्वियसली ये जो रिसीव पेमेंट पूरे साल का रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस में वो दिखना चाहिए. टू बैलेंस नोट डाउन 4,500 4,500 कैश इन बैंक 9,500 9,500. So I started my recent payment with cash balance of 4,500 and bank balance of 9,500. कैंसिल करना है. ये मेरे पास ओपनिंग में थे, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए. कैंसिल हो गए मतलब मैंने बोला एवरी आइटम मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, इफ यू रिमेम्बर. अब यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा इसमें चेंज. ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीडेंट पेमेंट will act like a trial balance. Opening balance sheet and recent payment will act as a trial balance. Every item of opening balance sheet and recent payment account will have one unique effect in the income and expenditure balance sheet. So जो भी मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा या जो भी मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीव पेमेंट में रहेगा उसका एक इफेक्ट रहेगा. तो यहाँ पे जो 4,500 है ना, ये दिख रहा है क्या आपको, ये 4,500 ओपनिंग 1 अप्रैल को जो मेरे पास कैश बैलेंस था, इसका एक इफेक्ट ये हो गया, तो वो क्वेश्चन में कैंसिल हो गया. 9,500 का एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया, या इसका इफेक्ट यहाँ पे हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ पे हो गया. कैंसिल करो, ये आंसर में नहीं आएगा. दिस इज द पोजीशन ऑन 1 अप्रैल. हमें 31 मार्च की पोजीशन चाहिए, वो कैंसिल हो गया. आगे ट्यूशन फीस रिसीव्ड इनकम, फाइन कलेक्शन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज कैपिटल में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू मतलब इनकम. रिसीट साइड पे रेवेन्यू मतलब इनकम, पेमेंट साइड पे रेवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर. सैलरी पेड एक्सपेंस, बुक्स परचेस स्कूल असेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, repairs expense, ports expenses expense, annual gathering expense expense, furniture purchase asset, payment for furniture asset, and सब payment करने के बाद you are left with this much closing asset. ठीक है, आगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल, इनकम है जो कि रिसीवेबल भी है. एड इन इनकम, एड इन असेट. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरी पेएबल, सैलरी भी है पेएबल भी है. एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी.
depreciate books and furniture minus from expense add in, sorry आज ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, माइनस फ्रॉम असेट एड इन एक्सपेंस, ठीक है ठीक है। अब फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ग्रीन वैली स्कूल लोनावला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ग्रीन वैली राइट स्कूल लोनावला, स्कूल लोनावला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं जो इजीली सबको समझ में आ जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ। ठीक है, सो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010, 19 इज द ईयर, ठीक है। दिस इज लाइबिलिटीज, दिस इज सॉरी एक्सपेंडिचर एंड इनकम, क्रेडिट इज इनकम, डेबिट्स आर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आगे, व्हाई वी डोंट टेक ओपनिंग बैलेंसेस, बिकॉज ये कैश कब की है, 1 अप्रैल 9 की है, और हम बैलेंस शीट कब की कर रही है, 31 मार्च 10 की। तो 31 मार्च के 10 के बैलेंस शीट में 1 अप्रैल की कैश आएगी या 31 मार्च की कैश आएगी, 31 मार्च की कैश आएगी, इसलिए हम वो नहीं लेते, ठीक है। क्लियर होगा, डोंट वरी, मैं आपको वो समझा भी दूंगा, ठीक है। एक्सपेंस इनकम, दिस इज बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 2010, हमें 31 मार्च 10 की बैलेंस शीट, और ये कैश कब की है, 4,500 9,500 कैश कब की है, 1 अप्रैल की कैश है, इसलिए 31 मार्च के कैश में वो नहीं आएगा, एसेट साइड पे नहीं आएगा। 30 ये डेट देखो, ये डेट है 1 अप्रैल 9, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 1 अप्रैल 9 है, ये सब है ड्यूरिंग द, ये सब हुआ है 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 तक, ये सब पेमेंट्स हुए हैं 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 तक, और ये बैलेंस बाकी है 31 मार्च 10, सब पेमेंट हो गए होने के बाद, ये पहले समझ में आना चाहिए। सो 1 अप्रैल 9 की कैश कौन से बैलेंस शीट में आएगी,
फर्स्ट अप्रैल 9 की कैश कौन से बैलेंस शीट में आएगी? फर्स्ट अप्रैल 9 या 31 मार्च 9, 31 मार्च 9 या फर्स्ट अप्रैल 9 जो यहाँ पे दिख रही है। एंड वो और ये 31 मार्च 10 के बैलेंस शीट में क्या आएगा? उस तारीख की कैश। तो ये दोनों क्लोजिंग में आएंगे। ऐसे उसका रीजन ये है, डेट्स समझ में आनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का है, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का है। 31 मार्च 10 का हम बैलेंस शीट कब की करेंगे? 1 अप्रैल 9 की कर रहे हैं या 31 मार्च 10 की कर रहे हैं? 31 मार्च 10 की कर रहे हैं। तो 31 मार्च के 10 में कैश एंड बैंक बैलेंस कौन सा आएगा? उस तारीख का आएगा विच इज क्लोजिंग। एंड जो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है उसमें देख सकते हो आप वो बैलेंस है, ये ओपनिंग के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, इसलिए हम नहीं लेते। इसलिए मैं उनको कैंसिल कर देता, बोलता उसका कोई मुझे आंसर के लिए कोई फायदा नहीं, उसका जो आंसर के लिए फायदा नहीं मैं कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे नाउ एक सेंटेंस लिख लेना, एक सेंटेंस, और ये सेंटेंस वीआईएमपी है। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स, एवरीवन कहां पे? टॉप में लिख लेना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज लिखो, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। सेकंड, फर्स्ट एक्सेप्शन कैश एंड बैंक बैलेंस। सेकंड, स्टॉक, स्टॉक एंड थर्ड थर्ड जब टाइम आएगा तब समझाऊंगा, लिख के रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड यूर स्टॉक। क्योंकि वो जो ओपनिंग का स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, वो एक्सपेंडिचर साइड पे आता है। इफ यू रिमेंबर हम फाइनल अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंडिचर में लिखते थे, तो हम उसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सो तीन चीजें छोड़ के बाकी सब चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। कैश बैंक एंड ओपनिंग स्टॉक छोड़ के ऑल अदर बैलेंस शीट विल कम इन योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। लिखो, सो कैपिटल फंड ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में आ जाएगा 6,54,000। लिखो कैपिटल फंड इन कॉलम में लिखो खाली 6,54,000। इसमें चेंजेस होंगे, प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा वो प्लस माइनस होगा। उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैंसिल हो गए, वो वही मैंने बोला है, ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। बिल्डिंग इनर कॉलम में एसेट में 1 अप्रैल को मेरे पास 5 लाख की बिल्डिंग थी। इस साल में देयर कैन बी एडिशनल बिल्डिंग, देयर कैन बी डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग में चेंज। आगे नेक्स्ट फर्नीचर 60,000 इनर कॉलम में। बिगिनिंग में मेरे पास 60,000 का फर्नीचर था, मे बी इस साल में मैं और फर्नीचर परचेस कर सकता हूँ, डेप्रिसिएट कर सकता हूँ, तो फर्नीचर विल चेंज, इनर कॉलम में लिख दिया। बुक्स बिगिनिंग में मेरे पास 30,000 के बुक्स थे, इनर कॉलम में। फर्स्ट अप्रैल को 30,000 के थे, साल भर में मैं कुछ परचेस कर सकता हूँ, कुछ सेल कर सकता हूँ, डेप्रिसिएशन दे सकता हूँ, तो उनमें चेंजेस हो सकते हैं, तो मैंने उधर लिख दिए इनर कॉलम में, चेंजेस के लिए इनर कॉलम में। आगे एफडी 50,000 की, बिगिनिंग में मेरे पास 50,000 की एफडी थी, मैं और एफडी कर सकता हूं तो ऐड हो जाएगा, मैं एफडी सेल कर सकता हूं रियलाइज कर सकता हूं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो सकती है, तो इनर कॉलम में रख दिया। सो देखो क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल फंड क्लोजिंग में आ गया, कैश एंड कैश बैंक कैंसिल हो गए, बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स एफडी वैसे के वैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गए। इसलिए मेरा स्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम एक्सेप्ट कैश बैलेंस बैंक बैलेंस एंड स्टॉक इफ एनी। ठीक है, अच्छा अब रिसीव पेमेंट को हाथ लगाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कैंसिल हो चुके, यस। ट्यूशन फीस इनकम साइड पे बाय ट्यूशन फीस, एक इफेक्ट
85,000। इसमें आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में रखो। फाइन कलेक्शन 2600 इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। फाइन कलेक्शन 2600 इनकम। एडमिशन फीस 10,000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं, कोई कैपिटलाइज वगैरह नहीं बोला तो इनकम एडमिशन फीस 10,000। आगे उसके बाद डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज, एडिंग कैपिटल फॉर 50,000। ओपनिंग में 6,54,000 का कैपिटल था, अब डोनेशन की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा 50,000। कैपिटलाइज करने को बोला तो मैं कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितने का इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा उन्होंने 2,500 इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट इनटू ब्रैकेट रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू मतलब P&L इनकम एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ग्रांट 1,00,000 की इनकम हो गई। देखो एक जगह पे गया हर आइटम, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कट हो गए, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ट्यूशन फीस इनकम, फी फाइन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन कैपिटल में ऐड किए, इंटरेस्ट इनकम में ऐड किए, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम एक जगह पे गया। अब पेमेंट साइड, सैलरीज पेड एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरीज की? यस सर है, 1,05,000 एक्सपेंस में टू सैलरीज 1,05,000। देन बुक्स परचेस किए, 10,000 के बुक्स परचेस किए तो असेट में ऐड होगा। है क्या बुक्स ऑलरेडी? यस सर, हमारे पास पहले ही 1 अप्रैल के 30,000 के बुक्स है और हमने 10,000 परचेस किए, तो क्लोजिंग में टोटल बुक्स कितने हो गए? 30 प्लस 10 40,000 के हो जाएंगे। एड एडिशन और परचेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेस ड्यूरिंग द ईयर लिखो चाहिए तो। कितने के बुक्स हो गए हमारे पास टोटल? 40। इसलिए मैं बोलता हूं कि उसको इनर कॉलम में लिखो। 30 के बिगिनिंग में थे और 10,000 के परचेस किए, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल मेरे पास 40,000 के बुक्स है। आगे नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,500 एक्सपेंस। सैलरीज के लिए जगह रखो, उसको एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो 20,500। देन ऑफिस रेंट 5,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या ऑफिस रेंट की? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह कुछ भी नहीं है सर, तो बाहर लिख दो ऑफिस रेंट कितना है 5,000। देन रिपेयर से मेंटेनेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं 12,000। कितना? रिपेयर से मेंटेनेंस 12,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 4,300। देन एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 7,000। एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में लिखो आग बंद करके। कितने के एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस है? 7,000। देन 2 फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर एसेट में आएगा। पहले ही हमारे पास 60,000 का फर्नीचर है, हमने और परचेस किया पूरे साल में। 1 अप्रैल को 60,000 का फर्नीचर है, हमने साल भर में परचेस किया अप्रैल से मार्च के बीच में 40,000 का। टोटल फर्नीचर इनर कॉलम में होगा 1,00,000 का। 60 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 40 का परचेस किया, तो एट द एंड कितना रहेगा 1,00,000 का। और सब पेमेंट होने के बाद यू आर लेफ्ट विद कैश एंड बैंक 1,359,000।
cash and bank. Cash is 1300 inside this is 59,000. So closing cash and closing bank balance वहां पे आ जाएंगे 1300 and 59,000. Everything is one place. हर चीज एक जगह पे गई. Opening balance sheet became closing balance sheet except cash balance, bank balance and stock if any. Stock expense में जाएगा opening stock बोल के. ठीक है. कैश बैंक बैलेंस कैंसिल हो जाएंगे रिसीव पेमेंट के साथ. फिर रिसीव पेमेंट को एक जगह पे लिख दिया. इनकम है तो इनकम ऐड किया, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड किया, एसेट है तो एसेट में ऐड किया, लायबिलिटी तो लायबिलिटी में ऐड किया. एक इफेक्ट दे दो. ठीक है. अच्छा आगे अब एडजस्टमेंट्स करेंगे. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, रिसीवेबल, एड इन इनकम. इनकम आउटस्टैंडिंग है. कोई देखो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. ठीक है. सो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. अगर वो एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस में ऐड होगा और लायबिलिटी में ऐड होगा. अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इनकम में ऐड होगा एंड असेट में ऐड होगा. क्या बोल रहा ध्यान देना. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा. इनकम है तो इनकम में ऐड करो, असेट में ऐड करो. एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस में ऐड करो, लायबिलिटी में ऐड करो. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड 12,000. सो ट्यूशन फीस आपने 85,000 की रिसीव की है, 12,000 की आउटस्टैंडिंग है. योर टोटल ट्यूशन फीस इनकम इज 97,000. इनकम 97,000 है, उसमें से रिसीव्ड 85 है, रिसीवेबल 12,000 है. So income is not what you received, it is also receivable is also your income. So add in asset outstanding tuition fees. इस साल में वो 12,000 मिले नहीं, होपफुली नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे. इस साल में मिले नहीं, नेक्स्ट ईयर में मिल जाएंगे. ये एक्सपेक्टेशन के साथ हम नेक्स्ट ईयर करेंगे. आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज. मैंने बोला आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा. इनकम है तो इनकम ऐड करो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड करो. आउटस्टैंडिंग सैलरीज दोनों साइड पे P&L में भी ऐड होगा, बैलेंस शीट में भी ऐड होगा. टोटल इज 1,11,000. सो योर सैलरी इज 1,11,000, उसमें से पेड इज 1,05,000. 6,000 इस साल में पेड नहीं हुआ, होपफुली नेक्स्ट ईयर में पेड होगा. होपफुली, आई डोंट नो, मुझे गारंटी नहीं है. जब तक मुझे नेक्स्ट ईयर नहीं पता चलता मैं कैसे बोलूंगा. ये हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी. अगर पेड होता है तो अच्छी बात है, अगर पेड नहीं होता तो लायबिलिटी एज इट इज रहेगी. जब तक वो पेड नहीं होता, जब तक वो पेमेंट साइड पे दिखता नहीं, तब तक ये लायबिलिटी रहेगी. 5,000 एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी. सॉरी 6,000 है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1 डन. एडजस्टमेंट 2, depreciate books by 6,500, furniture by 7,000. less depreciation 6,500 एंड फर्नीचर को 7,000, लेस डेप्रिसिएशन 7,000. फर्नीचर अब दिखेगा 93,000 का एंड बुक्स दिखेंगे 33,500. देखो बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ पढ़ के डेप्रिसिएट हो गए 33,500. इधर के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ग्रीन वैली वाले. 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर. हाँ, फर्नीचर पे 7,000, बुक्स पे 6,500. माइनस फ्रॉम एक्सपेंस, माइनस फ्रॉम असेट, एड इन एक्सपेंस. Adjustment 1 done, adjustment 2 done, adjustment number 3 done. Now you have to just balance. Income की total देखता हूं मैं. Generally incomes are more. Yes, income is more. दिख रहा है. एक 97,000 की इनकम है, दूसरी 1 लाख की इनकम है, 2 लाख से ज्यादा इनकम है. एक्सपेंस 1,50,000 1,60,000 के बीच में रहेगा. So 600, 500, 1,100, 1 carried. 98. 98 plus 2, 1 lakh. 1 lakh plus 1 lakh, 2 lakhs. So 2 lakhs 10, 2 lakh 12, 212. 2,12,100 is the income. गलत है तो आप मुझे पिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई कैन गो रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं.
कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, सो योर टोटल इनकम इज मोर देन एक्सपेंस बाय 500, 300 मतलब 800, 800 प्लस 500, 1300 प्लस 800, 2100, 100 रहा, 2 कैरिड हुआ। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा 113 प्लस 2, 111 प्लस 2, 113, 113 प्लस 20, 133, 133 प्लस 5, 138, 40, 50, 150 प्लस 11, 161 प्लस 3, 64 प्लस 10, 74, 74 से मुझे 200, 174 से 74 प्लस 26, 200, 26 प्लस 12, 38. I think, I don't know. Yes, perfect, 38,800. मेरा कैलकुलेशन बराबर है 2 excess of income. Income is more than expenditure. Over expenditure. That is surplus. Credit side is more than debit side. Credit total is more than debit total. This is credit balance. So, credit balance in income and expenditure. Credit balance in income and expenditure means surplus. Add in income. Surplus, add in capital fund. 38,800. So total income is, total capital is 800. Then 12, 1 carried 71, 7,40,800 plus 6,000. Next, 7,48,800. ठीक है? Then अच्छा, आपके और मेरे आंसर अलग क्यों आ रहा है फिर? अच्छा, पिछले वाला आंसर है ये, ठीक है ठीक है। देन बिल्डिंग को बाहर ले लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कट मत करो, उसको अंडरलाइन करके बाहर ले लो। सो 500, 800, यस, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 593 प्लस 3, 596, 626, 27, 27 प्लस 60, 27 प्लस 60, 87 माइनस 1, 86, 86 प्लस, नहीं कुछ तो गलत होगा मेरे से, लेट मी चेक। 800 कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था ना, तो डायरेक्टली इतने बड़े वैल्यूज लेने से मैं थोड़ा सिंपल जाता हूँ, जाने दो। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है, सामने वैल्यूज ठीक से दिखते नहीं। 0, 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 1, 10, 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे से। 10 प्लस 3 13, 13, अच्छा कहाँ पे मैंने लेते टाइम गलत लिया है? अच्छा, एफडी बाहर नहीं लिया, तभी बोलू कुछ तो मिस हो रहा है मेरे से। ऐसे बाहर लेना भूलना मत खाली, ठीक है? सो 748 बराबर है क्या? चेक करो, 7,48,800, परफेक्ट।
तभी मैं बोला कुछ तो डिफरेंस आ रहा है मेरा। ओके, 7,48,800। अच्छा, कोई क्वेश्चंस है? If this tuition outstanding tuition fees are not received in the next year, हाँ yes, if you don't receive, ये outstanding है, if you don't receive this in the next year, ये 12,000 नेक्स्ट ईयर में नहीं आते तो ये बैड डेट्स हो गया, दैट विल बी ट्रीटेड एज बैड डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स होगा, अभी नहीं। तो अभी तो वो रिसीवेबल दिखेगा, अगर अभी पता होता वो मिलने वाला नहीं तो उसको असेट नहीं दिखाते, उसको बैड डेट्स दिखाते। ठीक है, आगे। अच्छा, उसके सिवा और क्या क्वेश्चन है? हाँ, थोड़ी फार स्क्रीन लैग हो रही होगी, प्लीज उतना एडजस्ट करो थोड़ा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कैश इन एंड कैश आउट बैंक कंसेप्ट? कुछ नहीं है, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, राइट, ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, दीज आर ओपनिंग कैश, दीज टू आर ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, एंड क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। एज सिंपल एज दैट। बैलेंस शीट कौन से तारीख पे करो वो देखो ना, इसलिए डेट पता होनी चाहिए आपको। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। इसलिए मैंने ओपनिंग वाले क्लोजिंग में लिए नहीं, ओपनिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिए नहीं। कौन से कैश एंड बैंक बैलेंस लिए? क्लोजिंग वाले लिए, 1,359,000, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। और जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस में इंक्रीज डिक्रीज हो, रिसीव पेमेंट दिखा रहा है ना, सो डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस ले लो। ठीक है, बैलेंस शीट में वी आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, सो आई रिक्वायर क्लोजिंग बैलेंसेस। लाइक फर्नीचर के केस में मुझे ओपनिंग बैलेंस पता था 60, क्लोजिंग बैलेंस मैंने ढूंढा, राइट। बुक्स के केस में मुझे ओपनिंग बैलेंस पता था 30, मैंने क्लोजिंग बैलेंस ढूंढा। आई नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, आई ऑल्सो नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता है तो मैं डायरेक्टली क्लोजिंग में क्लोजिंग लिख दूं ना, क्यों ढूंढते बैठो ऐसे। ठीक है, और जो मेरा सेंटेंस हो याद रखना, क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस शीट विल बिकम क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड स्टॉक, डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, बिकॉज जो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक होता है ना, वो ओपनिंग स्टॉक होता है, एंड ओपनिंग स्टॉक इज एन एक्सपेंडिचर। हम ट्रेडिंग के डेबिट पे लेते थे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट पे लेंगे। एक्सपेंडिचर होता है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक है तो वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, उसको एक्सपेंडिचर में लेंगे, बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, योर होमवर्क इज, मैं जानबूझ के होमवर्क देने वाला हूं, एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, और मुझे आंसर शेयर करना है। यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस है, इट्स फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, युवा तरुण मंडल, युवा तरुण मंडल, ये आपको करना है। लेट मी चेक, या उससे सिंपल भी हो सकता है तो मैं दे सकता हूं आप लोगों को। ओके, ट्राई तो करो। ओके, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन, मतलब क्लिक होगा। एंट्रेंस फीस, इफ कुछ लिखा है उन्होंने, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। कितनी एंट्रेंस फीस है? 5,500, उसमें से 50% कैपिटलाइज करनी है, मतलब कैपिटल फंड में 50% लेके जाना है। 5,500 का 50% हाफ 2,750, तो 2,750
2750 कैपिटल में ऐड होगा एंड 2750 इनकम में रहेगा। 5500 को स्प्लिट करके लिखना है, 50% कैपिटल में, 50% इनकम में। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम, डोनेशंस कुछ लिखा है क्या? एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज, ये कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम में। लैंड एंड बिल्डिंग असेट, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट, न्यूज़पेपर्स एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी असेट, सब पेमेंट होने के बाद क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक असेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड ऑफिस रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडिंग एक्सपेंस, एडिंग लायबिलिटी। तो योर सैलरी विल बी नाउ 8,000 plus 2,000, your total salary will be 10,000. Rent 3,000 plus 1,500, total rent expense will be 4,500. Liability में आएगा 2,000 plus 1,500, 3,500. Entire 50% interest fees capitalize करनी है, मतलब 50% income, 50% capital. Depreciate land and building by 10% and plant and machinery by 5%. लैंड एंड बिल्डिंग को 1 अप्रैल को परचेस किया है, 15 को हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 16, सो 35,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा अप्रैल से मार्च, 10% फॉर 12/12, योर डेप्रिसिएशन विल बी 3,500। एंड प्लांट एंड मशीनरी को 5% से डेप्रिसिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी 1 जुलाई को परचेस किया, 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स। आपने 75,000 की प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है, उस पे 5% फॉर 9 मंथ्स, जो भी आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा। एसेट से माइनस होके P&L एक्सपेंडिचर डेबिट। देयर आर 300 मेंबर्स ऑफ द कंसर्न। ये जो क्लब है आपका या जो भी आपकी एनपीओ है उसमें 300 मेंबर्स है, ईच मेंबर्स पे 500 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर बंदे से 500 रुपए लेना है। सो टोटल इनकम 1,50,000 होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन इनकम। यू आर रिसीव्ड जस्ट 1,26,500, इनकम होनी चाहिए 1,50,000, यू आर रिसीव्ड 26,000, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन is I think 23,500. Add in income, add in asset, add in income, add in asset. ठीक है, मैंने डिस्कस किया है, एक बार घर पे ट्राई करो एंड शेयर मी द आंसर बाय टुमारो। ठीक है, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 67, द शीट इज ऑलरेडी ऑन योर ग्रुप, गो एंड चेक ऑन डॉक्स, यू विल फाइंड इट। ठीक है, थैंक यू।